Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter of economics that is people as resource, and in this chapter today we are going to cover about quality of population. In the previous video we already had discussed that how people act as a resource. If the investment is made by the government or by the people or the resident of a country, then that particular country definitely develop. And investment in the form of the education and in the form of the health. So if you want that your country develop, then the country must have to invest in education or in the health, by which they can be benefited in the future. So today we are going to discuss it upon how the quality of population enhances. So as we all know that the quality of population enhances when the literacy rate of any country increases or the health rate of any country increases. If any country want to be developed, then it is very necessary for that particular country to increase the literacy rate and to improve the health status of their own country. So firstly we will discuss about the education, means what are the benefit of education. If any country's population is educated or literate, then what type of benefit that country avails. What type of benefit? It's very simple. You all can easily guess what are the benefit that particular country avail. Like if any person is educated, then he must get good job, a good salary package, a very important point of view for any individual. Next, it open new horizon for him. Like in the story of Sakal and Vilas, हमने study किया था कि that Sakal get training in the computer line. That's why he get benefited with it, right? So it opened the new horizon for him. Now he can develop the new software for the computer, and by which he can earn more. He can not only develop himself, but he act as a developed resource for the country, for the society. Clear? So our next point is development of society as well. कि अगर कोई पर्सन एडुकेटेड होगा तो वो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, ना कि सिर्फ उसका बल्कि उसकी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है. It contribute in the national income. Obviously, if a person is in a good job and in the good salary package, obviously the national income of that country increases. And you all know very well कि अगर किसी country की national income rise होती है, so the development of that country definitely take place. Clear? So what government is doing for increasing the education rate of the country? Government क्या कर रही है? What are the steps taken by the government to increase the education? So what are the provision for education had been made? Firstly is universal access and quality of education. What they are saying कि सबसे पहला point जो उन्होंने माइंड में रखा वो ये रखा कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ऑल द पर्सन ऑफ द कंट्री मस्ट बी एजुकेटेड. हर एक पर्सन तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए. सबसे पहले पहुंचेगी, एक्सेस करेगी, ओनली देन दैट पर्सन कैन अवेल द एजुकेशन. रिमोट एरियाज में देखिए, बहुत दूर दराव के गांव हैं, बहुत पिछड़े हुए गांव हैं, आप देखते हैं वहां पर एजुकेशन अवेलेबल ही नहीं है. बच्चों को कई कई किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है फॉर टेकिंग द एजुकेशन. So obviously they are not interested in taking the education because they have to move along for taking the education. That's why government want कि universal access होना चाहिए और education must be quality oriented. Means the education जो आप provide करेंगे उसमें quality होनी चाहिए. It's just not like कि बस हो गया. Means you gave him the degree of 12th class but he did not know what actually he is doing. So they are saying that the quality of education is very necessary. So government is focusing on two things. First, universal access होना चाहिए, सभी लोगों तक education पहुंचे. And the second is the education must be quality oriented. Next is Navodaya Vidyalaya. You all know, I think you all had listened this word previously also. Navodaya Vidyalaya. Navodaya Vidyalaya had been opened for those students who are well off, who are very intelligent, but they did not have enough money to take education into the schools and the colleges. So ये नवोदय विद्यालय उन लोगों के लिए खोले गए हैं, उन बच्चों के लिए खोले गए हैं they are who are very intelligent, but due to their financial crisis they are not being able to take admission into the schools. So नवोदय विद्यालय उनके लिए काम करती हैं, especially for girls they are been doing this work. Next is expenditure on education, means budget.
ऑब्वियसली बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी कंट्री का बजट ही नहीं है that they can provide universal access to the education, then how can they can maintain the education for their country? So it is very necessary for any country to make expenditure over the education, and expenditure on education will be maintained only when their budget allows. So every year or in every 5 years, each government plans ki how much they are going to invest in the education sector, right? Because government is not going to only to develop education sector, उसको बहुत सारे sectors में investment करना होता है. Like they are going to invest their money in the army, they have to invest their money in the development of the country, over the infrastructure of the country, over the education of the country, over the health of the country. So there are various sectors in which government have to make the expenditure. So obviously government have to make a proper budget by which उनके जितने all other expenditure हैं वो suffer ना करें. So इसीलिए government have to make the plan out for making the expenditure on education. Clear? But main problem is कि people are not ready to send their children to the school. बहुत सारे लोग स्कूल बच्चों को भेजना नहीं चाहते, यूनिवर्सल एक्सेस नहीं हो रहा है. दे थिंक दैट कि अगर हम बच्चे को 8 घंटे के लिए स्कूल भेजेंगे, इट्स बेटर कि वो कहीं जाकर 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दिन के कमा लेगा. सो दे थिंक दैट कि उनकी प्रेजेंट अर्निंग ज़्यादा जरूरी है उसके फ्यूचर से ज़्यादा. तो लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए मीन्स टू फोर्स द पीपल कि हाँ यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन. तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया. सर्व शिक्षा अभियान मीन्स एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन, फ्री ऑफ कॉस्ट. एट फ्री ऑफ कॉस्ट it is essential to provide the education to the children. Elementary education become compulsory for the boys and for the girls at free of cost. So उन्होंने कहा कि भाई आपको सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी. यू नीड नॉट टू स्पेंड अ पैनी ओवर द एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड. इवन जो उसका स्टेशनरी होगी वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. सिंपली यू हैव टू सेंड योर चाइल्ड टू दी स्कूल. अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपको बिल्कुल एक पैसे का खर्चा नहीं करना एंड योर चाइल्ड विल बिकम एडुकेटेड. क्लियर? फिर भी लोग नहीं भेज रहे अभी भी. आप ये देखिए कि हाउ मच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड आर बीन यूजिंग बाय द गवर्नमेंट, बट स्टिल द पीपल्स आर नॉट रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट वीसीएस साइकिल. वीसीएस साइकिल मीन्स कि जहां पेरेंट्स चाहते ही नहीं है उनके बच्चे पढ़ें, because they didn't know the importance of education and health of their children, of themselves. That's why they also didn't want कि उनके बच्चे पढ़ें या उनकी हेल्थ अच्छी हो. So इसके लिए और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है, मिड डे मील हम आपको खाना भी देंगे, एक वक्त का खाना ही मिलेगा आपके बच्चे को. आप भेजिए अपने बच्चे को, आपको कोई खर्चा नहीं करना, आपको सारी स्टेशनरी हम देंगे, मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे. तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ट्राई करा कि भाई इस तरीके से हम लोग शायद बच्चों को स्कूल तक ला पाए. मतलब एजुकेशन तो बाद में स्टार्ट होगी, पहले बच्चों को कहाँ लाना है, स्कूल में लाना है. बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू दी स्कूल. नेक्स्ट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करा कि भाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज होना चाहिए. व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि बच्चे स्कूल आने चाहिए, कितने बच्चे इन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग स्कूल आ पा रहे हैं. क्लियर? सो स्कूल आने चाहिए बच्चे, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी. ठीक है, इसके अलावा ब्रिज कोर्सेज भी स्टार्ट करे गए, वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट करे गए. वोकेशनल ब्रिज कोर्सेज मीन्स कि जो आपके एजुकेशन को जोड़ते हैं आपके किसी और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड. जैसे कंप्यूटर कोर्स अगर आप करें तो एक ब्रिज कोर्स का काम करेगा आपके एजुकेशन में और आपकी सर्विस सेक्टर में. ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज यानी कि जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में मदद करेंगे. वोकेशनल कोर्सेज बहुत सारे स्टार्ट करे गए हैं. करिकुलम में मॉडिफिकेशन बहुत सारे करे गए हैं. नाउ अभी आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी हम लोग बात कर रहे हैं. एनईपी अब आने वाला है जिसमें बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आई है. सम वन थिंक दैट इट इज बेनिफिटेड फॉर द कंट्री, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एजुकेशन सेक्टर. सम वन आर थिंकिंग दैट नॉट, इट इज नॉट बेटर. सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. बट एनईपी जो गवर्नमेंट लेकर आई है वो कुछ सोचकर लेकर आई है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में चलकर मिलेंगे. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर हम देखें तो एनईपी का बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. क्लियर? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की नंबर इंक्रीज करा गया. इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज बाय विच
the people or the student can easily access to the colleges, to the universities, to the schools. अभी हमने बात की ना सबसे पहले यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए. यूनिवर्सल एक्सेस मतलब कि जो लोग हैं वो स्कूल कॉलेजेस तक पहुंचे, और वो कब पहुंचेंगे? जब स्कूल कॉलेजेस उनके शहर, उनके गांव में पहुंचेंगे. सो यूनिवर्सल एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट करे हैं? आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब स्टार्ट करें. क्लियर? सो गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग कर रही है. गवर्नमेंट ने अपना बजट भी इंक्रीज करा है. लास्ट टाइम के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. लिटरेसी रेट बहुत इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में. लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है, जो गर्ल्स को एजुकेट नहीं करना चाह रहे हैं. मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट 74% हमारे यहाँ है, तो 74% में सारी की सारी पॉपुलेशन ऐसे नहीं है कि बराबर के लड़के और लड़कियां एजुकेटेड है. मीन्स बॉयज आर मोर एजुकेटेड दैन द गर्ल्स. उसके पीछे भी पेरेंट्स का ही, फैमिली का ही पर्सपेक्टिव है. मीन्स व्हाट दे थिंक दैट कि लड़की को करना क्या, व्हाट शी डिड आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, घर जाना है, शादी करनी है, अपनी फैमिली का देख रेख करनी है. सो वाई शी नीड एजुकेशन? खाना पकाना सीखे, घर की सफाई करना सीखे, घर में कुछ और काम करना सीखेगी, तो जब दूसरे घर जाएगी तो बहुत उसके लिए अच्छा रहेगा. तो ये जो थिंकिंग है लोगों की, इट इज चेंजिंग, बट इट्स चेंजिंग वेरी स्लोली. बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है. सो इसीलिए हमारे यहाँ गर्ल्स का एजुकेशन रेशियो मेल के एजुकेशन रेशियो से काफ़ी कम है. मीन्स अगर फाइनेंशियली देखा जाए कि अगर किसी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एडुकेट मेल चाइल्ड रदर देन टू टीच द फीमेल चाइल्ड. वो कहेंगे कि भाई फाइनेंशियली हम लोग अच्छे नहीं है, तो घर के बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ाकर कुछ नहीं मिलने वाला. क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव वी आर सीइंग इन आवर सोसाइटी. पैट्रिकल सोसाइटी वी ऑल हैव. So now our next quality of population is health rate. Health rate means कि we are saying that the quality of population has been increasing by two aspects. First is literacy rate and second is the health rate. Means the health status of any person should be good. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी कंट्री का हेल्थ रेशियो अच्छा नहीं है, यानी कि वहाँ के लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, सिकनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सो व्हाट दे कैन डिड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द कंट्री? नथिंग. वो कुछ नहीं कर सकते. व्हाट दे कैन डिड? अगर उनका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, आज मेरे सिर में दर्द है, मैं हाउ आई कैन टीच यू? मेरा दिमाग कहाँ रहेगा? सिर दर्द में रहेगा कि दैट आई हैव हेडेक. हाउ कैन आई टीच टू द चिल्ड्रन? पॉइंट्स आगे माइंड में नहीं आते. ठीक है, बॉडी एक है तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, फीवर है तो नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अगर आप अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप हेल्दी होने चाहिए. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्पेंडिंग देयर मनी ओवर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारा IMR, इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे. लाइक IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स कि द चिल्ड्रन जिसकी डेथ 1 साल का होने से पहले, यानी कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है और 1 साल का होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. इसमें कमी आनी चाहिए. ठीक है, डेथ रेट में कमी आनी चाहिए. डेथ रेट में कमी आने का मतलब यही है कि लोग डिसीजेस वगैरह से नहीं हो रहे हैं. हेल्थ को और अच्छा करने के लिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन चला रही है. लाइक पोलियो ड्रॉप्स की वैक्सीनेशन कितने साल से चल रही है. नाउ आवर कंट्री इज पोलियो फ्री कंट्री. लाइक इसके अलावा आपकी बहुत सारी वैक्सीनेशन पूरे 1 साल तक, 12 साल तक का चार्ट बच्चे को मिलता है कि व्हेन ही टेक बर्थ इन दी वर्ल्ड, तो उसको पूरे एक वैक्सीनेशन का चार्ट मिलता है कि 15 साल तक आपके बच्चे को ये वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में सिक्योर रहे, फ्यूचर में उसे ऐसी कोई हेल्थ डिसीज ना हो. क्लियर? तो इस टाइप की बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रखे हैं. गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है साल भर के लिए. अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो अभी रिसेंट में अप्लाई करें कि 1 साल तक की, 6 महीने तक की जो वैक्सीनेशन है वो फ्री मिलती हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है. तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ओवर द एजुकेशन एंड ओवर द हेल्थ ऑफ द कंट्री बाय बिकॉज दे न्यू कि वी द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. तो अगर बच्चा एजुकेटेड हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा तो फ्यूचर में वो एसेट्स की तरह काम करेगा. और अगर बच्चा अनएजुकेटेड रह गया या अनहेल्दी रह गया, देन दे विल एक्ट एज अ लायबिलिटी फॉर द कंट्री. वो बोझ बन जाएगा अपने परिवार पर, अपनी सोसाइटी पर, अपनी कंट्री पर, क्योंकि वो कंट्री को कुछ देने की बजाय कंट्री को ही उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ता है.
So it is very necessary to improve the education and health for the country, for the resident of the country. Clear? तो IMR की हमने इसमें बात करी, डेथ रेट कम होना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट प्रिपेयर करा रही है, ताकि बाय विच मोर गुड ट्रीटमेंट कैन बी रिसीव बाय द पीपल and they will act as a healthy person for the country. So I think you all would understood what are the quality of population and how we can maintain the quality of the population, and what steps have been taken by government for improving the health and the literacy rate of the country. So this is all about today's video. I think you all enjoyed the videos. Thank you for watching the video.